In my previous video, I had taught you about water pollution, air pollution, and what are the effects, what are the natural resources, and many other things. Now in this video, we'll understand how soil is formed and what are the various biogeochemical cycles. Actually, we already know how soil is formed because we had read in SST. See, it is written, the outermost layer of earth is called crust and the minerals found in this layer supply a variety of nutrients to life forms. अर्थ का जो सबसे पहला लेयर है ऊपर का उसको क्रस्ट बोलते हैं और इसमें बहुत सारा मिनरल्स रहता है जिसकी वजह से वो लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करता है, रेंजिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू इंसेक्ट्स एंड टू प्लांट्स. नाउ हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड? We already know that formation of soils takes thousands and millions of years to form even a few centimeter length of width of soil. So the first factor is sun. The sun heats up rocks during the day. Sun दिन में rock को expand करता है धूप के कारण और गर्मी में रात को वो ठंड के कारण contract करता है. So because of this repeated expansion and contraction, the rocks cracks and this ultimately leads to the formation of soil. Remember this, that this is happening daily on a daily basis and for a period of thousands of years. Now water. सॉइल में अगर कोई क्रैक है उसके अंदर अगर पानी घुस जाता है तो वो बाद में जब फ्रीज होता है तो वो क्रैक वाइडन हो जाता है जिसकी वजह से रॉक ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स. अनदर प्रोसेस इज दैट when waves are continuously striking the cliff, then it will break. Similarly, rain if falls very harshly on a rock, then it will break. So in this way, due to water, soil is formed. Now wind, not only wind helps in formation of soil, but it also carries the soil. We have already read this. Wind के कारण पत्थर से पत्थर टकराकर वो टूटता है और जो बना हुआ सॉइल है वो उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है. Then living organisms like lichen, which is the symbiotic association of fungus and algae. So इस तरह का organisms अगर soil में grow करता है तो वो कुछ chemicals release करता है जिसकी वजह से soil rock break हो जाता है. And the roots of big trees sometimes go into the cracks in the rocks, and as the roots grow bigger, the crack is forced bigger. So these were the reasons how living organisms are responsible for the formation of soil. Now we already know about the soil profile. What are the various layers? Topsoil, subsoil, bedrock, and so many layers. There were 4 layers. What is humus? Humus is the organic matter which is formed by the decomposition of dead plants and animals. जब plants और animals मर के soil में रह रहा है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज करके डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाता है जिसको ह्यूमस बोलते हैं. तो इट इंक्रीजेज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल. ह्यूमस के कारण सॉइल ज़्यादा पोरस होता है. पोरस हो रहा है मतलब उसमें स्पेस काफ़ी बढ़ रहा है सॉइल में, तो इसकी वजह से पानी अंदर तक जाएगा और एयर बहुत अच्छे से रहेगा, तो रूट्स विल बी एबल टू रेस्पायर प्रॉपरली और उससे सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट भी बढ़ रहा है. देयरफॉर ह्यूमस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द सॉइल. नेक्स्ट, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन्स ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स in addition to the soil particles is called topsoil. Topsoil is very important because it decides biodiversity in that area. जितना fertile soil होगा उतना तरह का उसमें plants होगा तो उतना तरह का living organisms उसमें grow करेगा. बहुत सारे farmers fertilizers और pesticides use करके soil का fertility increase कर रहे हैं, but over time वो actually soil को unfertile कर रहा है. So it is quickly turning into barren land. Removal of the useful components from the soil and addition of other substances which are eventually killing the organisms is called soil pollution, about which we already know what is soil pollution and how is soil pollution caused. So we should prevent one another thing is that soil erosion. Removal of top layer of soil is called soil erosion. So everyone should try to prevent soil pollution and soil erosion. See, this is an activity here. They are pouring water on 2 trays. On one they have planted grass and another is just sand. जब इसमें पानी गिर रहा है तो सारा सैंड फ्लो होकर नीचे चला जाएगा पानी के साथ फ्लो होकर, बट इसमें प्लांट्स है तो वो सॉइल को गिरने से बचाएगा. सो दिस शोज हाउ प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन. प्लांट का रूट सॉइल को रोक लेता है जिसकी वजह से वो इरोड नहीं हो रहा है.
So this is the importance of afforestation in controlling soil erosion. The vegetative cover on the ground has a role to play in the percolation of water into the deeper layers too. Percolation of water मतलब सॉइल के कितना अंदर तक पानी जाएगा. तो जितना ज़्यादा प्लांट्स होगा वो पानी उतना देर होल्ड करके रखेगा, तो वो सॉइल के अंदर अंडरग्राउंड वाटर ज़्यादा रिचार्ज होगा. Now coming to the next topic, biogeochemical cycles. You'll have to learn the definition first. Biogeochemical cycles मतलब bio is for biology and geo for you can understand geography और geology. So ऐसा एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी में भी है, कोई भी लाइफ फॉर्म में भी है और नेचर में भी है. तो वो दोनों एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में बार बार साइक्लिक वे में घूम रहा है. Therefore, it is called biogeochemical cycles. So, a constant interaction between the biotic and abiotic components of the biosphere makes it a dynamic but stable system. ये इंटरैक्शन के कारण मैटर और एनर्जी दोनों बार बार ट्रांसफर हो रहा है. कैसे हो रहा है we'll understand from here. The first biogeochemical cycle is water cycle, about which we already know. Water present on the surface of earth evaporates due to the heat of the sun. They rises upwards and there they condenses to form rain droplets, and these raindrops when get heavy they fall as rain. So but all the rain, all the water that falls on the land does not goes back to the seas. सारा पानी जो गिर रहा है रेन के फॉर्म में वो सारा समुद्र में थोड़ी ना जाएगा या रिवर में नहीं जाएगा. कुछ सॉइल के अंदर चला जाएगा जो अंडरग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएगा. कुछ वेल्स में, ट्यूब वेल्स में, ये सब फॉर्म के थ्रू वेल्स में स्टोर हो जाएगा. कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज कर लेंगे और प्लांट्स भी अपने लाइफ प्रोसेसेस में. तो इस तरह से वाटर साइकिल कंप्लीट होता है. नाउ वाटर इज नॉट ओनली एवापोरेटिंग फ्रॉम द सरफेस वाटर लाइक ओशियंस, रिवर्स एंड सीज. ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में भी वाटर जाता है और व्हेन ह्यूमन बींग्स रेस्पायर दे रिलीज वाटर. सो दैट वाटर वेपर इज ऑल्सो बींग एडेड इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. Next is the nitrogen cycle. We already know that human beings या किसी भी एनिमल्स को नाइट्रोजन डायरेक्टली ज़रूरत नहीं है, बट हम लोगों के बॉडी में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है जो नाइट्रोजन से कंपोज्ड है, लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स. सो नाइट्रोजन वो सब फॉर्मेशन में ज़रूरत है. जैसे हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में ले रहे हैं, नाइट्रोजन हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं लेते हैं. प्लांट्स के फॉर्म में हम लोग नाइट्रोजन अब्जॉर्ब ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं. एंड वी ऑल्सो नो दैट प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट डायरेक्टली टेकिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. दे ओनली टेक अप द नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल. तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को सॉइल में कौन लाएगा? वो दो प्रोसेस से होता है. एक बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया और एनी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि रूट के नोड्यूल्स में होता है और वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को सॉइल में ले आता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. एंड द सेकेंड प्रोसेस इज ड्यूरिंग लाइटनिंग. जब बिजली कड़कता है, चमकता है सॉरी, तब एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल में आता है. सी इट इज रिटन ड्यूरिंग लाइटनिंग द हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. मतलब ये NO2, NO इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जब पानी के साथ मिक्स होकर वो रेन वाटर के फॉर्म में गिरता है, जस्ट लाइक दैट फॉल्स इन एसिड रेन, तो वो नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड बन के सॉइल में आ जाता है एंड विच इज देन लेटर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स. सो नाउ वी हैव लर्न्ड दैट हाउ atmospheric nitrogen is getting converted into its suitable form, that is nitrates and nitrites. We already know the formula for nitrates. It is NO3 minus and nitrites is NO2 minus. सो नाइट्रोजन जब सॉइल में आ गया उसके बाद वो क्या होता है? प्लांट उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है विद द हेल्प ऑफ वाटर और प्लांट उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है. अमाइनो एसिड्स आर फर्दर यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स. फिर वो ह्यूमन बींग्स के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाता है जब वो प्लांट को कंज्यूम करता है और अपने अपने इंडिविजुअल बॉडी में अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वो और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनते जाता है. फिर जब कोई प्लांट या एनिमल अगर मर जाएगा तो वापस बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करके सिंपल फॉर्म में मतलब नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा और वो सॉइल में आ जाएगा. सॉइल में आने के बाद एक अलग तरह का बैक्टीरिया होता है
जो कि राइजोबियम से ठीक अपोजिट होता है, तो वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है. दैट प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन. सो यू सी वी स्टार्टेड विथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसको राइजोबियम या फिर लाइटनिंग के वक्त वो नाइट्राइट्स बन रहा था, ग्रीन प्लांट्स ले रहा था. इट इज रिटन प्रोटोप्लाज्म. दिस मीन्स द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट इज यूजिंग द नाइट्रोजन. सो ग्रीन प्लांट से वो एनिमल्स में आया, एनिमल्स से वेस्ट प्रोडक्ट एमोनिया बना, एमोनिया सॉइल में आने के बाद वापस नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बना. फिर ये नाइट्रेट्स सॉइल में ही है ना, तो वापस ग्रीन प्लांट इसको यूज़ भी कर ले रहा है, या फिर इसका कुछ हिस्सा डीनाइट्रिफिकेशन होकर वापस एटमॉस्फेयर में भी जा रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. कभी कभी क्या होता है, लैब्स में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके अमोनिया, तो देयरफॉर इट इज रिटन इंडस्ट्रियल फिक्सेशन. इंडस्ट्रीज में फिक्स हो रहा है. सो यू विल हैव टू लर्न दिस होल नाइट्रोजन साइकिल, द स्टेटमेंट्स ऑल्सो एंड दिस डायग्राम ऑल्सो. नेक्स्ट इज कार्बन साइकिल. सी कार्बन अर्थ में बहुत अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, डायमंड ग्रेफाइट के फॉर्म में भी, ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है. एटमॉस्फेयर में वो कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, सॉरी. सॉइल में या लैंड में यू कैन से इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. So it is present in different forms. Even in human beings, it is present in proteins, carbohydrates, fats, vitamins, nucleic acids. Almost anything is made up of anything and everything is made up of carbon. So now, how is carbon getting fixed? Atmospheric carbon, वो organisms में कैसे आ रहा है? So the very basic process is during photosynthesis. Photosynthesis के time पे organic compound carbon dioxide in atmosphere is getting converted into glucose. So it is written organic compounds. This means it is glucose. ये plants में है. And see it is written coal. मतलब जब plants, हम लोग को पता है when plants die and they decompose under high pressure and temperature, then it gets converted into coal. So ये plant coal में convert हो गया. ये plant as in some plants. Then we know that aquatic plants and animals form petroleum. So aquatic plant अगर कोई होगा तो उससे पेट्रोल भी बन सकता है. फिर कुछ प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से एनिमल्स में आएगा, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड. फिर aquatic animals will die and decompose to form petroleum. Similarly, some animals will produce inorganic carbonates in the form of shells. Many aquatic animals produce shells. So वो उस फॉर्म में रहेगा. फिर जब एनिमल्स रेस्पायर करते हैं और या डिकम्पोज होंगे तो वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो वो वापस चला गया. प्लांट्स भी जब रेस्पायर करेगा तो वापस डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दीज. दिस इज रिमेनिंग कार्बोनेट्स इन वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर वो वाटर में कार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है, जो कि फिर लाइमस्टोन, जिसको चूना बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, वो उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. So this is all about carbon cycle. So if we'll observe, there is one thing that carbon वापस convert हो रहा है into carbon dioxide with the process of respiration and decomposition. But ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो जा रहा है. Now, coming to the next topic, greenhouse effect. We already know this effect. एक कांच का घर, because वो हीट को ट्रैप कर लेता है, तो विंटर कोल्ड क्लाइमेट वाले एरियाज में प्लांट्स को ग्रो करने में वो हेल्पफुल इनफैक्ट है. बट द एटमॉस्फियरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैपिंग अ लॉट ऑफ हीट and thus it is this is creating a greenhouse effect in the environment. Therefore it is called the gas is called greenhouse gas, and that effect is called greenhouse effect, which is leading to global warming. We already know everything about this. There are various gases responsible for greenhouse effect: carbon dioxide, methane, and so on. Next is the oxygen cycle. Oxygen is very abundant element on our earth.
It is present in atmosphere in 21%. It occurs in combined state in it combines with various metals to exist in the Earth's crust. Why do we need oxygen? We need oxygen to respire. So see, atmospheric nitrogen during respiration is being used in respiration. Now the byproducts of respiration are carbon dioxide and hydrogen. Both are used during photosynthesis. Again in photosynthesis oxygen is released. एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन के टाइम पे कंज्यूम हो जाता है. रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रिलीज होता है. ये दोनों ही एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकलता है और ग्लूकोज निकलता है. ये ग्लूकोज वापस रेस्पिरेशन के टाइम पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है. दिस इज प्लस O2 बिकॉज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, then again it will form carbon dioxide which will in turn get used up in photosynthesis, or it will be released in atmosphere. So this is oxygen cycle. Now next is ozone. The formula for ozone is O3. It has 3 atoms, therefore it is triatomic. ऑक्सीजन में O2 था तो वो डायएटमिक था. ओजोन इज एक्चुअली पॉइजनस. अगर लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन होगा तो वो पॉइजनस होगा. सिर्फ अपर एटमॉस्फेयर में वो काम आता है जहाँ पर वो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस. बट ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है. एज यू कैन सी फ्रॉम द फोटो, द पर्पल रीजन रिप्रेजेंट्स दैट देयर इज अ ओजोन होल. क्योंकि बहुत सारा गैसेज होता है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच रिएक्ट्स विथ ओजोन and breaks it into oxygen, and this results in the depletion of ozone layer. अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर का होल है and this is further getting increased. So this is all about the biogeochemical cycles in which we learnt about oxygen cycle, carbon cycle, nitrogen cycle and water cycle. And we had also learnt the effect of plants or vegetation on soil. How does it prevent soil erosion? And the first topic was how is soil formed. So this is all about the chapter.